So hello guys, welcome to Gate Concept. Today we will discuss a load and current commutation circuit. Load and current commutation circuit. So in this session we will discuss about the concept of load and current commutation circuit. So let's start the concept of commutation circuit. So today in this lecture we will first we will define the concept of natural commutation. First I will define the concept of natural commutation. Natural commutation. Natural commutation and circuit. Then we will move to the forced commutation, forced commutation circuit. So what do you mean by natural commutation circuit? What do you mean by forced commutation circuit? So these are the concepts which must be understood in order to clear the concept of load and current commutation circuit. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग लोड की भी बात करेंगे और करंट कम्यूटेशन सर्किट की भी बात करेंगे. तो लेट्स सी द concept of load and current commutation circuit. So before starting load and current commutation circuit, we will define the concept of natural commutation circuit and the forced commutation circuit. Basically, we have in commutation circuit this is categorized into two parts. इसको हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं कम्यूटेशन सर्किट को. फर्स्ट वन इज द नेचुरल कम्यूटेशन. नेचुरल कम्यूटेशन सर्किट and second one is the forced commutation circuit. Forced commutation सर्किट. तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे. व्हाट इज नेचुरल कम्यूटेशन सर्किट एंड व्हाट इज फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट. दिस नेचुरल कम्यूटेशन सर्किट इज आल्सो कॉल्ड line commutation. Is also called line commutation circuit. Line commutation circuit. Again, this forced commutation is further divided into 5 class. First class is class A, that is also called load commutation. Load commutation. Second one is the class B. This is also called as current commutation. Current commutation circuit. Third is the class C. Class C. This is also called impulse, or we can say complementary commutation. Complementary commutation. And the final one is very important, that is class D. This is also called as a voltage commutation circuit. Voltage commutation circuit. Now what do you mean by the natural commutation? See here, before defining the definition of natural commutation, I would like to define this. First, take an example of diode. We all know diode is a uncontrolled devices.
Okay, this is diode. Second one is the fully controlled. Second one is the fully controlled switch. Fully controlled switch, that is GTO, trike, and transistor family. Transistor family. Third one, semi controlled switch. Semi controlled switch, like thyristor. Like thyristor. तो अगर मुझे इस थायरिस्टर को ऑफ करना है, अगर मुझे इस थायरिस्टर को ऑफ करना है, ये टर्मिनल गेट कहलाता है. दिस वन इज द गेट, दिस वन इज द एनोड, एंड अगेन दिस वन इज द कैथोड. दिस वन इज द कैथोड. ठीक है. तो अब अगर मुझे इस थायरिस्टर को ऑफ करना है, फॉर टर्निंग ऑफ दिस थायरिस्टर, ठीक है, फॉर टर्निंग ऑफ दिस थायरिस्टर, आइदर रिवर्स द सप्लाई, आइदर रिवर्स द सप्लाई. अगर सप्लाई रिवर्स हो गई, अगर सप्लाई रिवर्स हो गई, इट मीन्स वी ए के टेंड्स टू जीरो. ठीक है. आइदर वी रिवर्स द सप्लाई in order to turn off this thyristor, or in case of current arrangement, in case of current arrangement, if we are able to, if we are able to make the anode current less than holding current, if we are able to make the anode current less than the holding current, then obvious है ये थायरिस्टर मेरा ऑफ हो जाएगा, रिवर्स स्टेट में चला जाएगा. तो either reverse the supply or make the current less than the holding current, then the thyristor will get turned off. So यहाँ पे सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है. अगर सप्लाई रिवर्स हो गया, उस केस में थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा. तो इस तरह के कम्यूटेशन सर्किट को, इस तरह के कम्यूटेशन सर्किट को हम लोग लाइन कम्यूटेशन सर्किट कहते हैं. तो डेफिनेशन इसका होना चाहिए, इफ द नेचर ऑफ सप्लाई, if the nature of supply supports commutation, supports commutation, सपोर्ट्स कम्यूटेशन. कम्यूटेशन का मतलब ही होता है थायरिस्टर को ऑफ करना, डिवाइस को ऑफ करना, कोई भी डिवाइस हो उसे ऑफ करना, है ना. कम्यूटेशन का मतलब होता है करंट को होल्डिंग करंट के बराबर करना, ताकि डिवाइस मेरा टर्न ऑफ हो जाए. अगर नेचर ऑफ सप्लाई सपोर्ट कर रहा है कम्यूटेशन को, तो उसे हम लोग लाइन कम्यूटेशन कहेंगे या नेचुरल कम्यूटेशन कहेंगे. तो इफ द नेचर ऑफ सप्लाई सपोर्ट्स कम्यूटेशन, then it is known as, then it is known as line commutation. Line commutation. Applications, applications are, applications are such as rectifier,
AC voltage controller, AC voltage controller और साइक्लो कन्वर्टर और साइक्लो converter. So if nature of supply supports commutation, then it is known as line commutation. Applications are rectifier, AC voltage controller or cyclo converter. Next one is the forced commutation. Forced commutation. Forced commutation. तो डीसी सप्लाई की केस में डीसी सप्लाई कांट सपोर्ट नेचुरल कम्यूटेशन. डीसी सप्लाई जो है नेचुरल कम्यूटेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें एक स्पेशल सर्किट लगाने की ज़रूरत पड़ती है. हमारी कोई भी सर्किट हो, अगर उसमें अगर हमें कम्यूटेशन परफॉर्म करना है, उसे टर्न ऑफ करना है, तो वहाँ पे हमें एक स्पेशल सर्किट डिज़ाइन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ द डिवाइसेस. तो दिस इज कॉल्ड द फोर्स्ड कम्यूटेशन. तो आई विल ऐड द डिफिनेशन एज डीसी supply DC supply cannot DC supply cannot support natural commutation, natural commutation, natural commutation. So we have to use commutation circuit commutation circuit to turn off devices, to turn off the devices. Applications are applications are applications are like chopper and inverter. Chopper and inverter, we will see this concept under the topic chopper and inverter. तो एक अलग सा यूनिट है, चॉपर हमें डिटेल में पढ़ना है, इन्वर्टर भी हमें डिटेल में हमें पढ़ना है. तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे वहाँ पे हम फोर्स कम्यूटेशन को जो यहाँ लिख रहे हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा. तो डीसी सप्लाई कांट सपोर्ट नेचुरल कम्यूटेशन, so we have to use a special commutation circuit to turn off the devices, like in case of chopper and inverter. So we will discuss this concept later on. So तो फोर्स कम्यूटेशन में हम लोग देखेंगे कि हमें मेनली एनोड करंट को होल्डिंग करंट के बराबर या इससे बिलो करना पड़ता है. ठीक है, स्पेशल सर्किट को लगाने के बाद अगर हम स्पेशल सर्किट लगाते हैं तो हम एबल हो पाते हैं फॉर मेकिंग द एनोड करंट either equal to holding current or less than the holding current in order to turn off the devices. So this is called the forced commutation circuit. Now we will discuss the concept of class A commutation, that is also called the line, that is also called the load commutation circuit. So I am writing the heading class A commutation. Class A commutation. This is also called load commutation. Load commutation circuit. So in order to understand this concept, first we will draw the diagram. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. सपोज हमारे पास एक डीसी सप्लाई है, और हमने एक थायरिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है. दिस इज आवर थायरिस्टर. और यहाँ पे
डीसी सप्लाई है, दैट इज वी एस, दैट इज वी एस। इंडक्टर यहाँ कनेक्टेड है, these are the commutating elements, these are the commutating elements। लोड इज रेजिस्टेंस, लोड जो है वो रेजिस्टेंस है हमारे पास, लोड इज द रेजिस्टेंस, दिस इज आवर लोड। एंड फाइनली a capacitor is connected, this is also this is also behaving like a commutation। तो ये सर्किट डायग्राम बन गया। यहाँ पे डीसी सप्लाई, यहाँ पे डीसी सप्लाई मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये थायरिस्टर है, दिस इज इंडक्टर, this is inductor, that is L, this is capacitor, this is C, and this is resistance R। resistance resistance is load, यहाँ पे जो resistance है ये load है, ये load को represent कर रहा है। and LC is the commutation, LC is the commutating element, LC is the commutation element। so I will write here L and C is commutation element। सपोज करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं करंट को लिखना चाहूँ इन एस डोमेन, तो करंट की इक्वेशन आएगी, करंट की इक्वेशन आएगी इन लैप्लास डोमेन, इन एस डोमेन, दैट इज वी एस, वी एस कॉन्स्टेंट है, सो इसका लैप्लास में वी एस डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर प्लस एस एल प्लस 1/CS। वी एस डिवाइडेड बाई एस, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर एल सी प्लस आर सी एस प्लस 1 divided by CS। This can be written as Vs divided by S multiplied with CS divided by LC कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस आर सी डिवाइडेड बाई एल सी एस प्लस 1/1/1 एल सी। तो यहाँ से आई थिंक ये सी ये एस कैंसिल हो जाएगा, तो करंट का इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन, करंट इक्वेशन इज वी एस डिवाइडेड बाई एल अपॉन वी एस डिवाइडेड बाई एल अपॉन एस स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एस प्लस 1/LC, 1/LC। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है करंट का, ये फाइनल इक्वेशन है करंट का। तो अगर हम इसे सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम,
जो वहाँ पे इक्वेशन हमारी आती है ट्रांसफर फंक्शन की, इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो वहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास आती है ट्रांसफर फंक्शन की, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s जीटा ओमेगा एन डैम्पिंग रेशियो प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, 2s डैम्पिंग रेशियो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में जब हम टाइम रिस्पॉन्स स्टडी करते हैं सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के केस में, तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें हमारे इस वाले इक्वेशन से, तो हम डैम्पिंग रेशियो को निकाल सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। तो आफ्टर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली गेट दैट इज 2 डैम्पिंग रेशियो ओमेगा एन that is equal to R by L and omega n equal to 1 upon अंडर रूट एल सी। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और तो यहाँ से डैम्पिंग रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं आर अपॉन 2 ओमेगा एन दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एल। हेयर this term is defined as called as damping ratio, damping ratio, and this is defined as natural frequency, natural frequency। ठीक है। now in control system we have four different cases when damping ratio is greater than 1, then the response will show as a overdamped, then the response is overdamped, and when the damping ratio is greater than 0 but less than 1, then the response we are getting अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। तो उस केस में हम लोग अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स को ऑब्टेन करते हैं अगर डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 0 to 1 के बीच लाई करती है। अगर डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स शो कर रहा है। अगर डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर डैम्पिंग रेशियो 1 के बराबर है तो वहाँ पे हम लोग क्रिटिकल डैम्प डिफाइन करते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, इन वी आर इंटरेस्टेड इन अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। So in underdamped response, we have the value of damping ratio greater than 0 but less than 1। तो अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर शो करने के लिए डैम्पिंग रेशियो की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो करंट का ग्राफ हमें मिलता है, करंट का जो ग्राफ मिलता है उस केस में हम लोग करंट का ग्राफ ऑब्टेन करते हैं लाइक दिस वे। दिस इज 0, दिस इज पाई, तो समथिंग इस तरह से हम रिस्पॉन्स को ऑब्टेन करते हैं in case of zeta greater than 0 but less than 1 in case of underdamped response। ठीक है। now what happened, this is the equation, this is the graph for the output current, and this behavior, this response is underdamped, is under damped response। तो अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स को ऑब्टेन करने के लिए
जीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एनोड करंट जो है, एनोड करंट इंक्रीज किया, मैक्सिमम हुआ, और फाइनली इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एनोड करंट 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमने कम्यूटेशन को परफॉर्म कर लिया। कम्यूटेशन का मतलब ही होता है डिवाइस को ऑफ करना, और एक बार जब डिवाइस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो होल्डिंग करंट के बराबर हो जाए या होल्डिंग करंट से और बिलो हो जाए, तो हम कहते हैं कि डिवाइस मेरा ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो आवर डिवाइस इज गेटिंग ऑफ, हमारा डिवाइस ऑफ हो रहा है, तो हमने कम्यूटेशन अचीव कर लिया बाई अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, अंडर अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स को देखते हुए अगर हम अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स की बात करेंगे इस वाले सर्किट में, आरएलसी सर्किट में, जहाँ पे एलसी कम्यूटेशन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और आर मेरा लोड है, तो यहाँ पे जब हमने करंट का इक्वेशन लिखा, तो जब हमने करंट का इक्वेशन लिखा तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन आया हुआ है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, है ना। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, और डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच लाई करती है तो उस केस में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स बिहेव शो करता है, और हम कहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनोड करंट 0 हो गया और हमने कम्यूटेशन अचीव कर लिया और डिवाइस मेरा ऑफ हो गया। तो कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए डैम्पिंग रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। So, so the value of damping ratio must be less than 1, ये कंडीशन होनी चाहिए। इट मीन्स एट द सेम टाइम हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 2 ओमेगा एन इंटू एल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर शोइंग द बिहेवियर ऑफ अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। हम लोग यहाँ पे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा एन। तो ये सब कंट्रोल सिस्टम में आप लोग स्टडी किए होंगे, तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये सब हमें कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना होता है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? वन अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन शुड बी, व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर शोइंग द बिहेवियर, for showing the behavior of underdamped response, that the load R must be less than 2 omega n into L, where omega n is the natural frequency। ठीक है, अगर इसे मैं फर्दर एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो R इज लेस देन 2, ओमेगा n की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू एल। सो R मस्ट बी लेस देन 2 अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मस्ट बी लेस देन 2 अंडर रूट एल अपॉन सी। ठीक है, ये होना चाहिए। द लोड रेजिस्टेंस must be less than twice into under root L upon C. This can also be written as R square less than 4 L upon C. Now at the same time, what is the turn on time of the SCR? Turn on time of the SCR, turn on time of SCR, that is a thyristor। ये कितना हो जाएगा? ये ऑन है, ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक के लिए ऑन है, ओमेगा टी इक्वल टू पाई, सी द वेवफॉर्म हियर।
ठीक है। ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक हमारा थायरिस्टर जो है कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ से टाइम हम निकाल सकते हैं, दैट इज पाई अपॉन ओमेगा, दिस इज डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा डी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा एन 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का होल स्क्वायर। दिस इज ऑन टाइम ऑफ द SCR, this is on time of the SCR, this is called the on time of the SCR. Now we will move class B commutation circuit। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे क्लास B commutation circuit की तरफ। क्लास B, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ज़्यादातर लोगों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आती है, इसे समझने में दिक्कत आती है। क्लास B commutation circuit, this is also called current commutation, we already know। तो ये टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे, डायोड सर्किट पार्ट 1 एंड द डायोड सर्किट पार्ट 2, डायोड सर्किट पार्ट 1, डायोड सर्किट पार्ट 2, जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा उन्हीं को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, दैट इज क्लास बी कंप्यूटेशन सर्किट। ठीक है, वहाँ मैंने बताया है कि डायोड सर्किट के केस में अगर एलसी सर्किट है ना, एलसी सर्किट विद डायोड है या विदाउट डायोड है, तो वहाँ पे करंट का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन अक्रॉस द कैपेसिटर, करंट का इक्वेशन, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होता है, तो वो सारी चीज़ हमने वहाँ पे बताई है। तो आप लोग एक बार यहाँ पे आने से पहले डायोड सर्किट पार्ट 1 और डायोड सर्किट पार्ट 2 को जरूर देख ले। ठीक है, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो क्लास बी कम्यूटेशन सर्किट का पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज द मेन थायरिस्टर, दिस इज एक्सिलरी थायरिस्टर, ये कैपेसिटेंस है, और ये इंडक्टर है। दिस इज मेन थायरिस्टर, ये मेन थायरिस्टर है, ये कैपेसिटेंस है C, दिस इज आवर मेन थायरिस्टर दैट इज Tm, दिस इज एक्सिलरी थायरिस्टर दैट इज Ta, दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज इंडक्टर, और कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो Vc है। और एक चीज़ और है, सपोज करो डायरेक्शन ऑफ द करंट ये हमने एज्यूम कर रखा है, जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज IC, और यहाँ पे इस पूरे सर्किट में हमने एक डीसी सोर्स लगाया हुआ है, दिस इज डीसी सोर्स, दिस इज डीसी सोर्स, दिस इज डीसी सोर्स, और यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड दिख रहा है, दिस इज आवर लोड। आउटपुट लोड में आउटपुट करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई नॉट, और कुछ एजप्शन है हमारे पास,
ये मेन थायरिस्टर है ना, ये मेन थायरिस्टर है। और इस मेन थायरिस्टर में करंट सपोज करो फ्लो कर रहा है आई एम, सपोज करो आई एम फ्लो कर रहा है ना। और एजप्शन जो है, कुछ एजप्शन है हमारे पास। एजप्शन क्या है, देखते हैं इसको। फर्स्ट एजप्शन इज करंट जो आई नोट है वो कांस्टेंट है। करंट जो आई नोट है वो कांस्टेंट है। सेकेंड एजप्शन है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो इज वी एस, यानी इनिशियल जो वोल्टेज है, जो इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के अलोंग, जो इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के अलोंग वो वी एस है। ठीक है। और थर्ड एजप्शन इज थर्ड एजप्शन इज थर्ड एजप्शन इज जो ये मेन थायरिस्टर है, मेन थायरिस्टर जो है ये ऑन है, इज ऑन फॉर टी लेस देन जीरो। ठीक है। तो ये एजप्शन है हमारे, दिस दिस इज आवर एजप्शन। तो हम हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मेन पर्पस है, वो ये है कि इस जो मेन थायरिस्टर है, ये जो मेन थायरिस्टर है, इसे मुझे ऑफ करना है समहाउ, किसी भी तरीके से। जो आई एम करंट फ्लो कर रहा है इसको जीरो के बराबर करना। अगर ये मेन करंट जीरो के बराबर हो गया, अगर ये मेन करंट जीरो के बराबर हो गया, देन हम लोग कह पाएंगे, हम कह पाएंगे कि मेन थायरिस्टर जो है वो मेरा ऑफ हो चुका है। तो इस मेन थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए यहाँ पे डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई नेचुरल कम्यूटेशन को सपोर्ट नहीं करता है। DC supply can't support the natural commutation, so we have to use a special circuit in order to turn off this the main thyristor। तो यहाँ पे हमने एक अलग सा सर्किट लगाया हुआ है। एक्जुअली थायरिस्टर है, सी है, एल है, सी है और एक्जुअली थायरिस्टर है। इस वाले सर्किट से हम इस मेन थायरिस्टर को ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा कम्यूटेशन सर्किट है, ये पूरा का पूरा कम्यूटेशन सर्किट है। इस सर्किट का बस इतना ही काम है कि ये जो मेन थायरिस्टर है इसे ऑफ करना है। कहने का मतलब जो मेन करंट है उसे जीरो के बराबर करना है या होल्डिंग करंट के बराबर करना है। ठीक है। तो यहाँ डीसी सप्लाई है, तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों को डायोड सर्किट पार्ट 1, डायोड सर्किट पार्ट 2 समझना होगा। तो वहाँ पे जो इक्वेशन आई थी, अगर आप वो समझ गए हैं तो फिर ओके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्जुअली थायरिस्टर को ऑन करेंगे। फर्स्ट वी विल टर्न ऑन दिस द एक्जुअली थायरिस्टर। इस एक्जुअली थायरिस्टर को जैसे ही ऑन करेंगे, इस वाले पाथ को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर डिवाइस ऑन हो गया है तो इस पाथ को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है। सी है। तो सबसे पहले हम एक्जुअली थायरिस्टर को ऑन करेंगे। तो फिर से मुझे डायग्राम लगता है बनाना ही पड़ेगा। ये डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये मेन थायरिस्टर है, दिस इज आवर मेन थायरिस्टर, दिस इज आवर मेन थायरिस्टर। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक्जुअली थायरिस्टर को ऑन कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही ये एक्जुअली थायरिस्टर ऑन होगा, जैसे ही ये एक्जुअली थायरिस्टर ऑन होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है। ठीक है। और ये इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे इंडक्टर है। तो जैसे ही एक्जुअली थायरिस्टर को हम ऑन करेंगे, जैसे ही एक्जुअली थायरिस्टर को ऑन करेंगे, ठीक है, कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली कैपेसिटर फुल चार्ज था, इनिशियली कैपेसिटर फुल चार्ज था।
प्लस टू माइनस था, ठीक है। तो ये अब डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा और इसकी जो पोलैरिटी है मॉड टू की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मॉड टू की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अलॉन्ग वो माइनस टू प्लस हो चुका है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना शुरू होगा इस थायरिस्टर के ऑन होने की वजह से, इस थायरिस्टर की ऑन होने की वजह से, ठीक है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहा है। इनिशियली कैपेसिटर फुल चार्ज था विद द वोल्टेज Vs, अब ये डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहा है, डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। पहले करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, पहले करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, सी हेयर। अब जो है करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, कुछ इस तरह से। दिस इज आई, and this is our load, ये लोड है। This is the main thyristor, that is the Tm. This is source voltage, that is Vs. This is load, दिस इज लोड, और लोड में करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार वेवफॉर्म की बात कर लेते हैं, फिर सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएंगी। एक बार वेवफॉर्म की बात करते हैं। फर्स्ट वेवफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, है ना, फर्स्ट वेवफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। तो आउटपुट करंट तो हमारा हमने एज्यूम कर लिया है कि आउटपुट करंट कैसा है, कांस्टेंट है। आउटपुट करंट इज जस्ट कांस्टेंट, आउटपुट करंट मेरा कांस्टेंट है। और हम इस पूरे सर्किट को तीन मोड में डिवाइड करेंगे, है ना, तीन मोड में डिवाइड करेंगे। सपोज करो पहला मोड मेरा यहाँ तक रहेगा, दिस इज आवर फर्स्ट मोड, दिस इज आवर सेकेंड मोड, ये सेकेंड मोड रहेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मोड वन है, ठीक है, ये मोड वन है, दिस इज मोड वन। दिस इज मोड वन, दिस इज मोड टू, this is mode 2, and this is mode 3, this is mode 3, this is mode 3, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को हम लोग तीन मोड में समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। टाइम भी डिनोट कर लेते हैं, मोड वन एग्जिस्ट कर रहा है T1 के लिए, मोड टू एग्जिस्ट कर रहा है T2 के लिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आउटपुट करंट तो कांस्टेंट है, ठीक है, आउटपुट करंट का तो वेवफॉर्म बन गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेन थायरिस्टर के करंट की, मेन थायरिस्टर करंट की, दैट इज आई एम, दैट इज आई एम। तो मोड वन, अगर मोड वन की हम बात करें, अगर हम मोड वन की बात करेंगे तो मोड वन में क्या हो रहा है, मोड वन में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और एक्जुलरी थायरिस्टर को हमने ऑन किया। इनिशियली हम एक्जुलरी थायरिस्टर को टीए को ऑन कर चुके हैं, ठीक है। तो जब टीए ऑन होगा तो करंट डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, जब टीए ऑन होगा तो करंट तो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। कौन सा करंट, जो एल और सी में फ्लो कर रहा है, जो एल और सी में
फ्लो कर रहा है। सपोज करो इसे हम आईसी के नाम से जानेंगे, ठीक है। सपोज करो हम यहाँ पे आईसी बना दे रहे हैं कि आईसी करंट इज फ्लोइंग इन द एलसी सर्किट, और उसका नेचर कैसा है, मोड 1 में डिस्चार्जिंग है, ठीक है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो एलसी सर्किट में अब ये करंट एलसी सर्किट में फ्लो कर रहा है, ये जो करंट है वो एलसी सर्किट में फ्लो कर रहा है। एंड वी नो कि व्हेन द टीए विल ऑन, व्हेन द एक्सिलरी थायरिस्टर टीए विल ऑन, जब ये ऑन होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा, डिस्चार्जिंग करंट। एंड वी नो द करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन माइनस ऑफ वी एस अंडर रूट, दिस इज द डिस्चार्जिंग करंट, दिस इज द डिस्चार्जिंग करंट। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल करंट के अपोजिट फ्लो कर रहा है, एक्चुअल करंट के अपोजिट फ्लो कर रहा है। तो माइनस ऑफ वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। साइन ओमेगा नॉट टी, वेयर ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ये मैंने डिस्कस किया था, ये हमने कहाँ डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ डायोड सर्किट इन पार्ट 1, आई थिंक पार्ट 1, ठीक है। एलसी सर्किट में हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ करंट जो एलसी सर्किट में फ्लो करता है वो करता है वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ओमेगा नॉट इंटू टी, वेयर ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं तो प्लीज़ वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जरूर देखेंगे, तभी उनको चीज़ें समझ में आएगी। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन केस ऑफ एलसी सर्किट we are obtaining the same result. See here, यहाँ पे यहाँ अंडर रूट सी अपॉन एल, तो वी एस माइनस वी सी ओ, वेयर वी एस इज द डीसी सप्लाई, वी सी ओ इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पे सोर्स से तो कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे तो सोर्स से कनेक्टेड है नहीं, इसलिए सोर्स वोल्टेज कितना हो गया, सोर्स वोल्टेज 0 हो गया। और वी सी ओ जो है वो वी एस के बराबर है, वो वी सी ओ किसके बराबर है, वी एस के बराबर है। तो माइनस अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बताया था डिराइव करके। तो एक बार डायोड सर्किट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेंगे सभी लोग, तब उन्हें चीज़ें समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो व्हेन द TA will be on, then the current will flow minus of Vs under root C upon L sin of omega naught t, where omega naught equal to 1 upon under root LC। तो यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट नहीं है, इनिशियल वोल्टेज गिवन है, इनिशियल वोल्टेज कितना है, Vs, इनिशियल वोल्टेज इज Vs, सी है, इनिशियल वोल्टेज इज Vs, इनिशियल वोल्टेज Vs है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। तो कैपेसिटर के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा है, एलसी सर्किट के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा है, उसका नेचर तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम मोड 1 की अगर बात करें, तो मोड 1 में एक्सिलरी थायरिस्टर मेरा ऑन है, एक्सिलरी थायरिस्टर को हम ऑन कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर हम मेन थायरिस्टर के अलोंग की करंट की बात करें, तो मेन थायरिस्टर के अलोंग करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई नॉट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मोड 1 में जो मेन थायरिस्टर के अलोंग करंट फ्लो करेगा वो क्लियर है, वो आई नॉट ही फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो थायरिस्टर ऑन है वो कौन सा थायरिस्टर ऑन है, दैट इज द TA, ठीक है। और हमें एक चीज़ और समझ में आ गई, वो क्या, कि LC सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज द IC, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज द IC, उसे हम लोग IC कहेंगे। तो IC का जो नेचर है वो कैसा है, मोड 1 में माइनस साइन है, इसलिए नीचे की तरफ लाई करेगा, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, नेगेटिव में है तो नीचे की तरफ ये चला गया। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, Vs अंडर रूट सी अपॉन एल, ठीक है। ये 0 है
ये पाई। ठीक है, तो अप टू पाई तक की कहानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड वन में दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मोड टू की बात करते हैं। मोड टू में क्या हो रहा है, सी डायग्राम को देखते हैं। मोड टू में क्या हो रहा है, मोड टू में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, है ना। मोड वन में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, तो मोड टू में हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू, एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, और इसकी जो पोलरिटी है, वो पोलरिटी जो है वो क्या हो चुकी है, वो यहाँ पे माइनस हो गया है और यहाँ पे प्लस हो चुका है। ठीक है, तो इस माइनस की वजह से ये जो मेरा एक्सिलरी थायरिस्टर था, ये जो मेरा एक्सिलरी थायरिस्टर था, ये रिवर्स स्टेट में चला गया। ठीक है, ये रिवर्स स्टेट में चला जाएगा एक्सिलरी थायरिस्टर, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्लस की वजह से सॉरी, यहाँ पे एक डायोड भी होता है ना। क्लास बी कम्यूटेशन में एक डायोड भी होता है यहाँ पे, दिस इज डायोड। ठीक है, दिस इज डायोड। तो एक बार सब करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डायोड भी लगा रहता है। तो चलो अब देखो, तो कैपेसिटर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला थायरिस्टर जो अब तक ऑन था मोड वन में, ये रिवर्स स्टेट में चला जाएगा। लेकिन इस प्लस की वजह से यहाँ जो डायोड कनेक्टेड है, यहाँ जो डायोड कनेक्टेड है, इस प्लस की वजह से यहाँ जो डायोड कनेक्टेड है, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मोड टू की बात करें हम, अगर हम मोड टू की बात करें, तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह से बनना चाहिए। देखो, अगर हम मोड टू की बात करें, दिस इज मेन थायरिस्टर, ये मेन थायरिस्टर है, ये मेन थायरिस्टर है। मेरा डायोड ऑन हो चुका है, डायोड मेरा ऑन हो चुका है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ यहाँ इंडक्टर है, दिस इज इंडक्टर। और जो डायोड है वो मेरा ऑन हो चुका है, डायोड मेरा कनेक्ट कर रहा है। क्यों कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, और इसकी जो पोलरिटी है मोड टू में, वो माइनस इधर है और यहाँ प्लस। इस प्लस की वजह से डायोड मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, ये इंडक्टर है, दैट इज एल, यहाँ डायोड लगा हुआ है, और इस मेन थायरिस्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई एम फ्लो कर रहा है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस मेन थायरिस्टर को जीरो के बराबर करना या होल्डिंग करंट के बराबर करना। ठीक है, ताकि मेरा डिवाइस जो है वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाए विद द हेल्प ऑफ दिस कम्यूटेशन सर्किट। दिस इज आवर लोड, ये लोड है, फाइन, दिस इज लोड। ठीक है, और यहाँ करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई नॉट फ्लो कर रहा है। डायोड मेरा ऑन हो चुका है। तो अगर अब ये डायोड अगर ऑन हो चुका है, डायोड अगर ये ऑन हो चुका है, तो करंट जो है अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि डायोड ऑन हो गया। क्योंकि डायोड के केस में, जब डायोड ऑन होता है, तो उस केस में करंट फ्लो करता है हमेशा पी टू एन। करंट विल ऑलवेज फ्रॉम फ्रॉम पी टू एन। तो डायोड जो लगा हुआ था हमारे पास, है ना, डायोड जिस तरह से लगा हुआ था, तो ये पी है, एक्चुअली ये पी है और ये एन है। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, फ्रॉम पी टू एन, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द डायोड। ठीक है, तो करंट जो है एलसी सर्किट में अब फिर से अपोजिट हो जाएगी, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा एलसी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, वी एस अंडर रूट
C अपॉन L साइन ओमेगा नॉट इंटू टी। अब ये जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आई एम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट जो है इस मेन करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। इट विल अपोज द मेन करंट, इट विल अपोज द मेन करंट, ये मेन करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। इट विल अपोज द मेन करंट, ये मेन करंट को अपोज करेगा। ठीक है, और कुछ समय के बाद क्या होगा, ये जो ICT है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आई नोट के बराबर हो जाएगा, ये आई नोट के बराबर हो जाएगा, और ये आई एम भी आई नोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब दोनों करंट बराबर हो जाएंगे, जब दोनों करंट बराबर हो जाएंगे, जब दोनों करंट बराबर हो जाएंगे, उस केस में जो करंट फ्लो कर रहा है LC सर्किट में, है ना, वो आई नोट के बराबर हो जाएगा, वो आई नोट के बराबर हो जाएगा, है ना। और ये जो IC है इस मेन करंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली अल्टीमेटली IM जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ये करंट जो है इस मेन करंट को अपोज कर रहा है, ये जो IC है इस मेन करंट को अपोज कर रहा है, तो IC ऑफ T मस्ट बी इक्वल टू आई नोट एट सम मोमेंट। ठीक है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट व्हेन बोथ करंट इज इक्वल, व्हेन बोथ करंट इक्वल, बोथ करंट इक्वल, जब दोनों के दोनों करंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हम कहेंगे कि जो मेन करंट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लोड करंट तो कांस्टेंट है। लोड करंट कैसा है, लोड करंट तो कांस्टेंट है, लोड करंट तो कांस्टेंट है ना। तो ये अगर कांस्टेंट है और ये जो करंट है, ये जो IC है, ये इसको अपोज कर रहा है, IM को अपोज कर रहा है, तो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद जब दोनों करंट बराबर हो जाएंगे, जब दोनों करंट बराबर हो जाएंगे, सपोज करो ये 5 एम्पियर था, तो लोड करंट भी 5 एम्पियर था। अब ये IC ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, पहले अगर ये 1 था, अगर ये 1 होगा तो ये 4 हो गया, दोनों मिलके ये 5 हो गए, 5 हो गए। फिर ये 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा, दोनों मिलके 5 हो गए। फिर जब ये 3 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, दोनों मिलके 5 हो गए। जब ये 4 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और दोनों मिलके सच दैट दोनों मिलके 5 हो जाएंगे, है ना। जब ये 5 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, सच दैट 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। So the moment when the both the current will be equal, the moment when the both the current will be equal, जिस समय IC of t इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, उस समय हम कहेंगे जो मेन करंट है वो जीरो के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि IC जो है वो मेन करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन करंट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, जो मेन करंट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन करंट जीरो के बराबर हो गया, और यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, है ना, यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। मेन थायरिस्टर को ऑफ करना था, और यहाँ हमने ऑफ कर दिया, मेन थायरिस्टर IM को ऑफ कर दिया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो IM जो है, सपोज करो IM जो है वो इनिशियली 5 था, तो आई नोट के बराबर था। ठीक है, अब IC IM को अपोज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, IM की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो 5 से अगर ये 4 हो गया तो IC कितना बन जाएगा, IC कितना बन जाएगा, 4 प्लस IC 1 बन जाएगा, तब तो ये 5 के बराबर होगा, क्योंकि लोड करंट कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये 3 हो गया, ये लोड करंट है, ये इधर वाला सॉरी IC है, और ये मेन करंट। ठीक है, तो ये बन गया 5, क्योंकि IC जो है मेन करंट IM को अपोज कर रहा है। अगर ये 2 हो गया तो ये 3 बन जाएगा इक्वल टू 5, ये 1 अगर हो गया तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये 0 बन गया तो ये 5 बन जाएगा, 5 इक्वल टू 5। तो मेन करंट जो है अल्टीमेटली जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मेन करंट जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों मेन करंट जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि IC जो है वो मेन करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मेन थायरिस्टर के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा है IM वो जीरो के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे मोड टू की अगर हम बात करें, मोड टू की अगर हम बात करें, मोड टू, तो मोड टू में क्या होने वाला है? मोड टू में जो मेन करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मेन करंट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो मेन करंट है वो डिक्रीज हो रहा है और अल्टीमेटली मेन करंट इक्वल टू ज़ीरो। मेन करंट इक्वल टू ज़ीरो, जो मेन करंट है वो इक्वल टू ज़ीरो हो चुका है एट द एंड ऑफ मोड टू। और आईसी जो है, आईसी जो है जैसा पहले था अभी वैसे ही रहेगा, बस पहले नीचे ये नीचे पहले नीचे हम लोग शो किए हुए थे, अब ये ऊपर की तरफ शो करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम ही रहेगा। ठीक, तो ड्यूरिंग मोड टू करंट का जो इक्वेशन है वो वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी है। तो कुछ इस तरह से करंट मुझे मिलेगा, है ना, करंट मुझे कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। इन दिस वे, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है आईसी, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मेन करंट जो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से देखो, जैसे जैसे आईसी इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मेन करंट डिक्रीज कर रहा है, और जैसे ही करंट आई नोट के बराबर हो जाएगा, है ना, जैसे ही करंट आई नोट के बराबर हो जाएगा, जैसे ही करंट आई नोट के बराबर हो जाएगा, आई नोट के बराबर हो जाएगा, वैसे ही मेन करंट जीरो के बराबर हो चुका है, जीरो के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आई नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ये आई सी आई नोट के बराबर होगा वैसे ही मेन करंट जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो हमने अचीव कर लिया, मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा था उसे हमने अचीव कर लिया। एक और वेवफॉर्म है, एक और वेवफॉर्म है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम लोग बनाएंगे, दैट इज द वी सी। ये सपोज करो वी एस है, ये सपोज करो वी एस है। तो इनिशियली कैपेसिटर क्या था? फुल चार्ज था। इनिशियली कैपेसिटर इज फुल चार्ज। ठीक है, धीरे 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 ये डिस्चार्ज होता है, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होता है। दिस इज माइनस ऑफ वी एस। और अगेन ये मोड वन की कहानी है। मोड वन में प्लस वी एस से माइनस वी एस की तरफ ये पहुंचता है। मोड टू की कहानी जो है ये माइनस वी एस से हम देखेंगे, अभी बात करेंगे, चलो वेवफॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, मॉड जो थ्री है हमारा, एट द एंड ऑफ मॉड टू, एट द एंड ऑफ मॉड टू हमारे पास जो वोल्टेज है, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलता है ना, अभी हम बात करेंगे इसकी। और एट द एंड ऑफ मोड एट द एंड ऑफ मोड थ्री, एट द एंड ऑफ मोड थ्री ये जो वोल्टेज है ये अगेन वी एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे। तो मोड वन की ये कहानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोड वन की कहानी है।
ये एट द एंड ऑफ मोड टू, ये एट द एंड ऑफ मोड टू की कहानी है, एट द एंड ऑफ मोड टू। एंड एट द एंड ऑफ, सॉरी, एट द एंड ऑफ मोड थ्री, एट द एंड ऑफ मोड थ्री, एट द एंड ऑफ मोड थ्री की कहानी। ठीक है, तो देखते हैं इसे। ये तो क्लियर है, इनिशियली कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज था वो फुल चार्ज था Vs, ग्रेजुअली धीरे 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 ये माइनस Vs की तरफ पहुंचा है। ठीक है, मोड वन का कहानी जो है ख़त्म हो गया है। मोड टू की जब कहानी शुरू होती है तो अगेन ये माइनस Vs से, ठीक है, मोड माइनस Vs से, है ना, ये एक वोल्टेज है। अभी हम समझाएंगे इस चीज़ को, अभी इस कॉन्सेप्ट की भी हम बात करेंगे, ये क्या चीज़ है। दिस वन बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस ऑफ वी। सपोज करो एक वोल्टेज है, एक वोल्टेज, सपोज करो इस वोल्टेज को हम असाइन कर रहे हैं वी आर, वी आर। तो मोड टू की एंड पे, मोड टू की एंड पे यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा कैपेसिटर के अलॉन्ग मुझे, वो माइनस ऑफ वी आर मिलेगा। ठीक है, और अगेन जब मोड थ्री की जब कहानी शुरू होती है तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली प्लस वी एस की तरफ पहुँचेगा और अगेन ये कांस्टेंट हो जाएगा वी एस पे, ये कांस्टेंट हो जाएगा वी एस पे। तो इसका हम अभी कॉन्सेप्ट का जिक्र करेंगे, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये मोड वन है, दिस वन इज़ द मोड वन। यहाँ से यहाँ तक हम मोड वन की बात करें, मोड वन की बात कर रहे हैं। दिस इज़ द मोड वन, दिस इज़ द मोड टू, दिस इज़ मोड टू, दिस इज़ मोड टू, एंड दिस इज़ मोड थ्री, दिस इज़ मोड थ्री। फाइन, ठीक है, चलो। तो मोड टू की कहानी हम समझ में मुझे आ गया, है ना, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, मोड टू की कहानी समझ में आ गया। ठीक है, नाउ हम लोग बात करेंगे मोड थ्री की। तो मोड थ्री में क्या हो रहा है, सी हियर। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, हाँ, यहाँ पे हम देख रहे थे कि करंट जो है इस तरह से मेन करंट को अपोज कर रहा था, है ना, और मेन करंट तो जीरो हो चुका है। तो ये डिवाइस तो ऑफ हो गया, ये डिवाइस तो ऑफ हो गया। एक्जुअली थैरेस्टर मेरा पहले से ही ऑफ है, एक्जुअली थैरेस्टर मेरा पहले से ही ऑफ है। अब ये मेन थैरेस्टर मेरा ऑफ हो चुका है। क्यों मेन थैरेस्टर ऑफ हो चुका है? क्योंकि मेन करंट जो है वो जीरो हो चुका है। अब दोनों के दोनों डिवाइसेस मेरे ऑफ है। तो अब ये बताओ कि ये जो सोर्स है, इस सोर्स से मोड थ्री की कहानी शुरू होगी। अब सोर्स डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इस एलसी सर्किट से। तो मोड थ्री का जो कॉन्सेप्ट बनेगा, मोड थ्री का जो कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है, अब हम मोड थ्री की बात करेंगे, अब हम मोड थ्री की बात करेंगे। मोड थ्री, तो मोड थ्री में देखो क्या होगा। मोड थ्री, मोड थ्री में सर्किट में कुछ इस तरह का बनना चाहिए, सर्किट हमारा कुछ इस तरह का बनना चाहिए। ये डीसी वोल्टेज सोर्स है, मेन थैरेस्टर मेरा ऑफ हो चुका है, मेन थैरेस्टर मेरा ऑफ हो चुका है, मेन थैरेस्टर मेरा ऑफ हो चुका है। ठीक है, और ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ इंडक्टर है, और फाइनली यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये डिवाइस मेरा ऑफ है, मेन थैरेस्टर मेरा ऑफ हो चुका है। तो जब मेन थैरेस्टर ऑफ होगा, जब मेन थैरेस्टर ऑफ होगा और इसकी जो पोलरिटी है
वो एट द एंड ऑफ मोड टू ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका था, माइनस टू प्लस, ठीक है, माइनस टू प्लस ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका था। तो जब ऐसा हो रहा था एट द एंड ऑफ मोड टू, ठीक है, तो मेन थायरिस्टर यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इस मेन थायरिस्टर के करंट को अपोज कर रहा था, और ये मेन थायरिस्टर भी ऑफ हो चुका है। जब एक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ है, मेन थायरिस्टर ऑफ है, ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगेन जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने की कोशिश करेगा, अगेन जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने की कोशिश करेगा, और सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो करेगा, क्योंकि कैपेसिटर अगेन कनेक्ट हो चुका है सोर्स से, ठीक है, कैपेसिटर अगेन कनेक्ट हो गया है किससे, सोर्स से, और कैपेसिटर जो है चार्ज होने की कोशिश करेगा कुछ इस तरह। क्लियर है, कुछ इस तरह, ठीक है। तो एट द स्टार्ट ऑफ मोड थ्री वोल्टेज जो कैपेसिटर के अलोंग है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और ये एट द एंड ऑफ मोड थ्री के एंड पे कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, प्लस वी एस पे, है ना, प्लस वी एस पे ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, और प्लस वी एस को ये कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। तो ये मोड थ्री की कहानी हुई। तो इसी के आधार पे हम वेवफॉर्म को अब कंप्लीट वे में समझ सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट वे में समझ सकते हैं। सी हियर, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मेन थायरिस्टर के अलोंग जो करंट है ना, वो ऑफ हो चुका है, वो जीरो हो चुका है, तो मेन थायरिस्टर ऑफ है, ठीक है। तो आईसी की अगर बात करें, आईसी की अगर हम बात करें, तो आईसी तो आई नोट के बराबर हो जाएगा, आईसी तो आई नोट के बराबर हो जाएगा मोड थ्री में। क्यों? क्योंकि मोड थ्री की जब कहानी शुरू हो रही है तो दोनों के दोनों डिवाइसेस ऑफ हैं, लेकिन आईसी में जो करंट फ्लो करेगा, आईसी में जो करंट फ्लो करेगा मोड थ्री, एट द स्टार्ट ऑफ मोड थ्री, आईसी में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, क्योंकि आउटपुट करंट तो कांस्टेंट है ना, तो आईसी के अलोंग जो करंट फ्लो करेगा वो आई नोट के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? आई नोट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो आई नोट के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वेव फॉर्म में हमने दिखाया है कि आईसी जो है वो आई नोट के बराबर हो चुका है, ठीक है, ये तो जीरो हो गया। और वोल्टेज जो है मोड टू में अब देखो, यहाँ पे एट द एंड ऑफ मोड टू के एंड पे मुझे कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज है वो नेगेटिव ही मिलेगा, कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज है वो नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा नेगेटिव? एट द एंड ऑफ मोड टू की कहानी जब खत्म होगी, ठीक है, ये तो डिस्चार्ज है, पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तो कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज है मुझे वो नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव जब मिलेगा, है ना, उसके बाद मोड थ्री की कहानी शुरू होती है। तो वोल्टेज जो है वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अलॉन्ग वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और प्लस वी एस को अचीव करेगा, और इसे कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, है ना, व्हेन द डिवाइस इज गेटिंग ऑफ, व्हेन द मेन डिवाइस इज गेटिंग ऑफ, जब मेरा मेन डिवाइसेस ऑफ हो रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ मोड टू की अगर एंड की बात करें, जहाँ पे मोड टू खत्म हो रहा है, देखो, जहाँ पे मोड टू खत्म हो रहा है ना, तो वहाँ पे मेन थैरिस्टर तो ऑफ हो चुका है, लेकिन कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो माइनस टू प्लस है, वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, तो वहाँ पे मुझे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वी आर which is negative voltage across the capacitor when the main thyristor is getting off, ठीक है, main thyristor is getting off। तो यहाँ पे हम वी आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वी आर कैसे मिलेगा? वी नो फ्रॉम द इक्वेशन voltage across the capacitor is Vs cos of omega t। और voltage across the capacitor is equal to माइनस ऑफ वी आर, ठीक है, ये वी आर मुझे निकालना है। तो कितने एंगल के बाद मुझे माइनस ऑफ वी आर मिल रहा है? दैट इज पाई प्लस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा टी, यहाँ दे, ये पाई था, तो पाई प्लस ओमेगा। तो मोड टू का जो ड्यूरेशन है वो कितने समय तक के लिए? T2 के लिए, है ना, तो ओमेगा T2 इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वी आर, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी एस कॉस ऑफ ओमेगा टी टू इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर। तो यहाँ से वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी एस कॉस ऑफ ओमेगा टी टू हो गया, ठीक है। एंड सपोज करो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, this is our first equation, and at the same time what should be the current, and at the same time what should be the current at the end of mod 2 के end पे करंट कितना है, करंट तो आई नॉट है, है ना, करंट आई नॉट है। तो करंट अक्रॉस द एलसी सर्किट कितना होता है, वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी टू एट द एंड ऑफ मोड 2 की हम बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ मोड 2, एट द एंड ऑफ मोड 2, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा टी टू की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स आई नॉट डिवाइडेड डिवाइडेड बाई सपोज करो इसे मैं आई करंट अक्रॉस द कैपेसिटर आई सी पी मान लेता हूँ, है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी टू इक्वल टू आई नॉट। तो यहाँ से ओमेगा टी टू को लिखा जा सकता है आई नॉट अपॉन आई सी पी वेयर आई सी पी इक्वल टू वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आर कैन बी रिटन एज वी एस कॉस ऑफ ओमेगा टी टू की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं साइन इनवर्स आई नॉट डिवाइडेड बाई आई सी पी, ठीक है। तो वी आर कितना आ गया, वी एस कॉस साइन इनवर्स आई नॉट अपॉन आई सी पी, ठीक है। तो यहां से मैं वी आर को निकाल सकता हूं। दिस इज द जनरल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वी आर, दैट इज वी एस कॉस साइन इनवर्स आई नॉट अपॉन आई सी पी। आई नॉट कॉन्स्टेंट करेंट है, ये गिवन रहेगा, आई सी पी ये वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल ये भी गिवन रहेगा, साइन इनवर्स लगाएंगे, कॉस लगा लेंगे, वी एस इज द डीसी सोर्स वोल्टेज, अगेन दिस इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू वी आर, फाइन। और चाहे तो हम यहाँ से T2 भी निकाल सकते हैं, T2 कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है अंडर रूट एल सी हो जाएगी ना, 1 अपन अंडर रूट एल सी होती है, तो इधर जाएगा तो अंडर रूट एल सी हो जाएगा साइन इनवर्स आई नॉट डिवाइडेड बाई आई सी पी, ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, how to find out the T2, how to find out the VR. So this is all about the current commutation circuit. This is all about the current commutation circuit. Hope कि आप लोग सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट की। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।